वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ सैपियंस। सेपियंस सिर्फ एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू शो नहीं बल्कि एक कोशिश है इंटरेस्टिंग इंसानों से सीखने की। यही वजह है कि इस शो का फॉर्मेट ही है नो फॉर्मेट। इस पहले एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं गौरव सर। उनके बारे में और जानेंगे हमारे होस्ट निहार दिव्यस्था, जिन्हें आप सब उनके व्लॉग्स की वजह से पहले से ही जानते हैं। तो पेश है निहार दिव्यस्था प्रेजेंट्स सैपियंस। Finally, after a long wait, Sapien is happening. फर्स्ट एपिसोड किसी भी चीज का दिल के बहुत करीब होता है और ये एपिसोड भी कुछ ऐसा ही है। मैंने बहुत कुछ सीखा गौरव भैया से। गौरव भैया 5th ईयर के स्टूडेंट हैं और अपने कॉलेज के आखिरी पड़ाव पे है। जल्दी वो पास आउट होने वाले हैं। वो सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं, एक सोचने, समझने और चीजों को नए नजरिए से देखने वाले कलाकार भी हैं। उनसे बात करके लगता है कि एक कलाकार से बात कर रहे हैं। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सेपियंस। चलो सीखते हैं गौरव भैया के 5 साल के सफर से। पहले तो मेरा 4 साल यहाँ ख़त्म हुआ, 5वां साल चल रहा है। आई विल बी कम्प्लीटिंग माई 5th ईयर अभी। एंड आर्किटेक्चर ये 5 साल में मुझे समझ में आया। एंड द वे नाउ आई हैव गॉटन इनटू टू डिफाइन आर्किटेक्चर, इट इज़ बेसिकली हाउ we should understand common sense. Everybody has their own common senses. Architecture, by learning architecture, by the principles we learn, by the techniques we learn, by methods of learning architecture or by enjoying architecture, I understood it as a polishing of our common senses and how common senses will help us land on sensible spaces. So this is how I understand architecture as. And 5 साल का journey has been a long journey for sure, very very long journey, and has been quite a memorable journey. And apart from other engineering branches, I would say architecture is also an engineering branch, but it's a bit different from the other engineering or technical branches because architecture in itself combines the understanding of art and science both, art and technology both, which is why it becomes very much interesting and intriguing also while we get into architecture. Most of the people here, even myself, we weren't much aware about what we are going to be learning, but after completing 4.5 years and continuing my the last semester of the 5th year, I got to understand that architecture actually involves a lot of things beyond technicalities, beyond artistic expressions, beyond people skills and communities, beyond arts, beyond the equations of mathematics, equations of physics. It is beyond that. So it is engulfing a big umbrella, and it's actually to define it, it will be very easy कि एक umbrella of things under which you stand, and everything is at a hand's distance from you, and you have to delve into each and everything while you deal with a particular thing. This is so interesting. But I want to know how architecture came into your timeline. I mean, were you like very sure about it? I just want to know how. I wasn't too sure कि मुझे architecture करना है, but with time it has so been कि the interest got delved into architecture. Like before applying for JEE ARC paper, I wasn't even aware about like specific schools of architecture which are present in the country. I was much into the engineering branches, but like the engineering colleges in particular, one of my favorite subjects used to be physics. It is still a favorite subject of mine, physics and mathematics, but since I have been into like some school of arts before, during my high school days, so there was this inclination towards understanding people, towards understanding built masses, towards understanding expression of spaces, expression of people, expression of communities around me. So it so happened that all these lines converged into a point, giving me the appropriate option to choose, that's architecture.
So that's how everything gotten into and architecture so happened. So it wasn't planned like वैसे 5-7 साल पहले कि architecture करना है, because none of in my family belongs to such a domain. So yeah, and there was another thing which I personally feel why I chose architecture was I was very much interested not to go into a particular field. Like a particular field as in I didn't want to go choose any particular field and then go through it. Wherein architecture helped me because architecture has no particular field. Architecture itself has lots of field into it. As I said, it's an umbrella of fields which you have to go through. So by that I mean I'm fortunate enough that I chose architecture because that helped me to have everything into that roof. Even if I haven't become jack of all trades, but yeah, I still have all the trades to like get into and try my hands on. So yeah, architecture thus happened कि हर चीज करना है. वाओ, दिस इज सो ग्रेट. बट मुझे एक चीज जानने का क्यूरियोसिटी रहता है, लाइक आगे क्या स्ट्रगल्स हैं. आई डोंट नो, आई एम जस्ट क्यूरियस. आई जस्ट वांट टू नो कि किस चीज में आगे जाके हम लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं. In managing time. Yes. In managing time, because time management gets very 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 difficult. Because as I have said, architecture, अगर तुम core architecture practice करना चाहते हो, core architecture के चीज़ों में विश्वास करते हो, as in not just drafting, submitting और making designs as per time का constraint कि ये ख़त्म करना है, देना है. It is beyond that. अगर वैसा practice रह जाएगा, we'll be left in office cubicle जहाँ पे हम दिन रात बस draft ही करते जा रहे हैं, which is not a bad job I must say, but again तुम्हारा previous question जो था innovation, वो नहीं हो पाएगा. If you are considering innovations, it requires time, and 5 साल का डिग्री again is a time bound constraint. मतलब मुझे लोग मारेंगे अगर मैं कहूँगा बैचलर्स डिग्री आर्किटेक्चर का 5 से 10 साल कर देना चाहिए, बिकॉज आई से दिस बिकॉज आई फील कि BR डिग्री 5 साल में ख़त्म करने लग जैसा चीज़ है ही नहीं. इट इज़ मच बियॉन्ड दैट, विच इज़ वाई मास्टर्स कोर्सेज हैं, आई अंडरस्टैंड, बट वो बेसिक्स क्लियर करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए रादर दैन हैविंग मतलब मास्टर्स में ज़्यादा टाइम. पर या वी आर एक्चुअली बाउंड विद दिस टाइम फ्रेम कि हमें इस सेमिस्टर में इतना ख़त्म ही करना है, विच इज़ वाई अगेन दैट इज़ अगेन अनदर कंस्ट्रेंट कि हमें ख़त्म करना रहेगा, बिकॉज इट नीड्स इनोवेशन. अगर ज़्यादा टाइम लेता रहेगा देन इट्स नो मोर एन इनोवेटिव थिंग. इट हैज़ कम अप विथ टाइम. पर या मतलब दैट्स दिस द प्रॉब्लम कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं विद इन दीज 5 years, एंड वी हैव टू लर्न कि बाय द एंड ऑफ 4th year एटलीस्ट तुम्हारे थीसिस वाले पीरियड में जब तुम्हें एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, टू वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम एंड टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम, वो टाइम मैनेजमेंट अगर ये 4 साल में नहीं आएगा, you'll fall apart in your 5th year. कुछ सजेशन देंगे लाइक टाइम मैनेज कैसे? मेरा खुद का नहीं होता है. और यार टाइम मैनेजमेंट के लिए आई स्टिल डोंट नो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, पर क्या करना चाहिए, मम्मी पापा का सुनना चाहिए यार, थोड़ा टाइम पे खा पी के सो के करना चाहिए चीज़ें. पर बहुत लोगों को लाइक वीडियो बोरिंग लग रहा होगा, बट ये चीज़ें एक्चुअल में मुझे जाननी थी. लाइक अभी जो मैंने क्वेश्चन भैया से पूछा था कि आर्किटेक्चर में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो क्या क्या कर सकते हैं. लाइक पीपल लाइक मी who जस्ट फील कि दे आर नॉट गुड आर्किटेक्चर रिलेटेड चीज़ों में, वो लोग क्या कर सकते हैं? एक बहुत ब्लंट क्वेश्चन रहेगा मेरा. तुम्हारे जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई भी ब्रांच के बच्चों को उठाओ, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पूछो कि जो भी जिस फील्ड में एनरोल्ड हैं, लेट्स से कंप्यूटर साइंस, लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेट्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसे बच्चों को उठाओ ग्रुप में एंड आस्क देम इफ दे वांट टू परस्यू देयर कोर फील्ड्स. व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कोर फील्ड्स बहुत कम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज दे गेट लेस इंटरेस्टेड इन दैट, विच इज़ फाइन. वो वहीं से दे शार्पन देयर माइंड्स इन दीज 4 years एंड दे अंडरस्टैंड कि मेरे कोर फील्ड को छोड़ के आई एम मच इंटरेस्टेड इन अदर फील्ड्स और अलाइड फील्ड्स. सिमिलरली आर्किटेक्चर इज सच. आर्किटेक्चर एक प्लेटफॉर्म दे देता है इन 5 सालों में
to find out which exact field you want to have, because as I said कि architecture एक umbrella of fields हैं, तो which means architecture के बहुत सारे allied fields हैं. तो अगर तुम्हें core architecture practice नहीं करना है, if you don't want to design spaces, उसके बहुत सारे alternatives हैं. तुम्हें photography पसंद है, तुम करो architectural photography करो. Since I'm saying architectural photography because you'll after graduating you'll be having a BArch certificate with you. You will be called an architect. You will be having that AR wala designation to your name, which is why and as you love photography, you also love clicking pictures, like capturing moments of spaces, let's say capturing moments of masses, जिसको तुम आगे प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हो. देयर इज दिस प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी ऑल्सो. देयर आर लाइक वेरी वेल सेलिब्रेटेड आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर्स इन द वर्ल्ड. एंड देयर इज अनदर प्रोफेशन जिसमें कि आर्किटेक्चरल जर्नलिज्म किसी को अगर पसंद है, इफ यू लव जर्नलिज्म, यू मे ऑल्सो परस्यू आर्किटेक्चरल जर्नलिज्म. मतलब थ्रू आर्किटेक्चर you can get into various other platforms. There's never a like bounding gate which will stop you to like go into further fields, because architecture has always given that like freedom to get through all other fields also. And if you have that basic knowledge, as I said, architecture is a like polishing of the common senses. If you have that 5 साल का polishing of your common senses, you'll always land up in a very good profession other than core architecture. There's always this option. See, तुम्हारे 5 साल के कोर्स में there will be a time जब तुम्हें academic internship करना रहेगा, ठीक है. Like your other engineering batchmates, तुम्हें भी internship में जाना पड़ेगा. अब engineering batchmates जैसा अलग अलग companies में जाते हैं, you will be approaching to different architectural firms. अब वो तुम्हारी 4 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हें जिस पर्टिकुलर फर्म का काम पसंद आ रहा है और तुम्हें जैसा आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस पसंद आ रहा है, देयर वेरियस आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस. कोई शायद बहुत ज़्यादा लाइक ग्राउंडेड आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर रहा है, ही इज़ मोर इनटू वर्नाकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्चर. तुम्हें अगर वैसा कुछ पसंद आ रहा है, और यू एक्चुअली लव हैविंग मच मोर इनोवेशंस इन मटेरियल्स, जैसा ऐसा कोई फर्म तुम चूज़ कर रहे हो, और यू लव हैविंग फर्म्स जो बस ब्रिक में काम करते हैं. ब्रिक में बहुत ज़्यादा मतलब वो आजकल देखते हो ना, बहुत ज़्यादा ढिंचक डिज़ाइन बनते हैं, दूसरी ओर पर पैरामेट्रिक डिज़ाइन. तो अगर तुम्हें पैरामेट्रिक डिज़ाइन पसंद आ रहा है, तो देर आर मल्टीपल ऐसे सब डिविजनल फील्ड्स ऑफ प्रैक्टिस अंडर आर्किटेक्चर जो बहुत सारे आर्किटेक्चरल फर्म्स प्रैक्टिस करते हैं. You just have to identify them by the time you're going for your internship. तो वो identify करने के बाद you can land into those firms. उनसे 6 महीना वहाँ तुम काम सीखोगे. Like we have 20 weeks का provision, तो हम वो वहाँ सीख लेते हैं. अब उसके बाद we get into our thesis. thesis ख़त्म होने के बाद you are free. तुम अभी 5 साल समझ गए हो आर्किटेक्चर में करना क्या. Then if you want to continue that practice of getting into offices, वहाँ पे काम करने हैं, या फिर तुम्हें आके किसी अपना खुद का आर्किटेक्चरल फर्म अगर खोलना है, that's also an option, वो भी तुम कर सकते हो. Else you can go for masters. अब मास्टर्स करके तुम्हें किस फील्ड में मास्टर करना है, then again वहाँ एक क्वेश्चन आएगा. So that also will be guided by your 5 साल का जर्नी. फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर दिस एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग जैसे हमारा है, तो प्लानिंग इज अनदर एस्पेक्ट जिसमें कि मैक्रो लेवल पे चीज़ों को देखा जाता है. आर्किटेक्चर में माइक्रो लेवल पे देखा जाता है, और फिर प्लानिंग वाले सेक्टर में देयर इज दिस मैक्रो लेवल ऑफ क्या कहते हैं विजन. तो अब मैक्रो लेवल के विजन पे अगर हम चीज़ें देख रहे हैं, तुम्हें वो पसंद आ रहा है, तो दैट्स मोर ऑफ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड. So you have to go for masters in planning, masters in urban planning, masters in urban design, let's say. तो फिर तुम्हें वो प्रैक्टिस करके फिर किसी ऑफिस में ज्वाइन करना पड़ेगा. There's another provision कि तुम प्रैक्टिस ना करके, तब it's always recommended कि तुम प्रैक्टिस करो. फिर if you are interested to get into academics again, you can very well get into, you can be academician, architectural academician, वो भी ऑप्शन है तुम्हारे पास. And ये बात अपने आप खुलता जाएगा. अभी इट्स वेरी मच ऐसे एंटेंगल्ड इन माइंड कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बट एवरीथिंग हैज़ बीन सेट अप बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर. तुम्हें कैसे क्या करना है,
by the time you are getting off your internship and by the time you are getting off with your thesis, you will be clear कि अभी मुझे मास्टर्स करना है या अभी मुझे प्रैक्टिस में जाना है. बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ डिस्प्यूटेड थिंग कि हमें पहले मास्टर्स करना चाहिए या पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें मैं खुद भी अभी वैसे कन्फ्यूजन में हूँ. बट टॉकिंग टू वेरियस पीपल ये समझ में आया है कि इफ़ देयर इज दिस प्रोविज़न और तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, यू शुड कंटिन्यू तुम्हारा हायर स्टडीज़ एक साथ एंड देन तुम प्रैक्टिस में तो ज़रूर रहो. बिकॉज अनलेस यू प्रैक्टिस यू वोंट अंडरस्टैंड कि थियोरीज हाउ डू दे चेंज इन लाइक प्रैक्टिकल एनविजन्स. तो वो तो बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं. भैया आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा. और लाइक बिगेस्ट लर्निंग क्या है? बिगेस्ट लर्निंग इज़ एवरीबडी शुड अटेंड 6 महीने का इंटर्नशिप. वो स्किप नहीं करना चाहिए. ऑप्शन नहीं है स्किप करने का ऑल्दो, बट या इंटर्नशिप को आई डिड माई इंटर्नशिप एट जोधपुर इन जोधपुर विद अनु मृदुल आर्किटेक्ट्स, विद आर्किटेक्ट अनु मृदुल, एंड ही हैज़ बीन अ मेंटर टू मी अभी भी. एंड आर्किटेक्चर इन जोधपुर, सिंस मैं अपना इंटर्नशिप का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, आर्किटेक्चर इन जोधपुर वॉज अ वेरी राइट डिसीजन. आर्किटेक्चर इंटर्नशिप इन जोधपुर वॉज वेरी राइट डिसीजन जो मैंने तब लिया. बिकॉज वहाँ आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल, जिसके साथ मैं शायद बहुत ज़्यादा ऐसे आई वॉजंट मच फैमिलियर विद दैट वॉज सैंडस्टोन एज अ बिल्डिंग मटेरियल रादर दैन क्लैडिंग के सुंदर दिखाने के लिए एज अ डेकोरेटिव मटेरियल. नहीं, एज अ बिल्डिंग मटेरियल विच thrives on its like material properties, not its like visibility properties. So sandstone is a very 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 versatile material, and Jodhpur being a place जहाँ पे sandstone mining होता है, तो and my office जो कि पिछले 30-35 years से has been into Jodhpur sandstone, has been working into Jodhpur sandstone, and they have like devised various cutting edge methods, and they have devised various working methods. and तो सैंडस्टोन में काम करना क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड सैंडस्टोन में काम करना how much it is feasible, and why there is this need to understand local building materials, वो सब मुझे वहाँ जाकर समझ में आया. एंड आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट इनफ कि वहाँ मेरे टाइम पे देर वॉज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज़. There are multiple water bodies in Jodhpur, in the whole of Rajasthan, like stepwells and bawdi, like bawdis are stepwells, bawdis, jhalras and other kunds. So my office was one of those offices जिनमें कि they were actually practicing in making people understand the need of these stepwells, the need of conserving water as a resource. So and मैं पहले से भी बहुत ज़्यादा वॉज इन टू कंजर्वेशन आर्किटेक्चर. सो ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप फेज इट वॉज एन एडेड एडवांटेज, लाइक चेरी ऑन टॉप, कि मुझे तब पता चला कि वाटर कंजर्वेशन पे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं हम ऑफिस में. तो दैट हेल्प मी मच, एंड इट वॉज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई मस्ट से. इफ एनीबडी इज willing to join like architectural internship or want to practice architecture in Rajasthan and Ahmedabad, they must go. And there's this problem कि पैसे का इतना कम ही रहता है, but yeah, it is manageable. By the outcome we get, it is always manageable with the resource we get to thrive. ये जो प्रीवियस वाला पार्ट था, दैट वाज माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि यार इस पार्ट में ना लाइक मुझे बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली, लाइक बहुत नई चीज़ें जानने को मिली. जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, जो सैंडस्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल, देन भैया का एक्सपीरियंस इंटर्नशिप का करना चाहिए कि नहीं, देन क्या क्या पाथ से, ये सब चीज़ें पता चली यार इस पिछले कॉन्वर्सेशन में. अभी जो नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन है दैट इज़ अबाउट लाइक आर्किटेक्चर इन इंडिया. क्या है, क्या हो सकता है. पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो जैसे जैसे हम ना डेवलप्ड की ओर पहुंचते जाएंगे, हमारा आर्किटेक्चर का जो इतना अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा खुलता जाएगा. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, और ये वन ऑफ द रीज़न था आर्किटेक्चर ज्वाइन करने का.
लाइक मुझे तो लगता था लाइक गवर्नमेंट स्टेबल रहेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि एक देश को आगे ले जाने के लिए, डेवलप करने के लिए उसके आर्किटेक्चर में इन्वेस्ट करना इज़ अ वेरी लाइक प्रायोरिटी है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ में स्कोप हो सकता है, इसीलिए मैं पर्सनली इसीलिए मैंने चूज़ किया था। बाकी भैया जो मुझे पर्सपेक्टिव दिए, इट वाज लाइक अमेजिंग। मैं ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये सुनने के बाद आई वाज लाइक मैं सोचा क्यों नहीं था, और ऑब्वियसली मुझे पता चल गया कि एक एक्सपीरियंस का डिफरेंस जो है, भैया जो मुझे बताए वो कितना वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है। तुम लोग भी सुनो। अगेन अनफोर्सिंग इंस्टेंसेस को छोड़ के आई फील आर्किटेक्चर हैज़ ऑलवेज बीन डेवलपिंग इन इंडिया। जो मतलब आर्किटेक्चर का अपना पेस है इन इंडिया, टॉकिंग अबाउट द कंट्री, आर्किटेक्चर का हमेशा से अपना ही पेस रहा है। इट हैज़ नेवर बीन एट पार विथ अदर फील्ड्स, at par in other fields in terms of the entry level pay scale. I'm talking about the entry level pay scale. And why are we even comparing to other fields of profession? Architecture, advocacy and medical sciences, like doctors. These three are called professionals, and by professionals they thrive with their word of mouth. They thrive with like rather than having कि मुझे इतना ही पैसा मिलना चाहिए. There's nowhere ऐसे written, because these three professions, people are called professionals. So these three professionals actually thrive with the kinds of work they produce, the kind of work they are attributed to, and the kinds of work they exhibit. तो ये हमेशा से उन्हीं के क्रिएटिविटी को ही टेस्ट करने जैसा, उनके कैपेबिलिटीज़ को दिखाने जैसा फील्ड है. एंड इट हैज़ नेवर बीन लाइक ऐसे मैकेनिकल सिस्टम कि मैं आज बैठ के खट 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 लगा दिया एंड एवरीथिंग इज लाइक लाइनिंग अप मेरे सामने एंड मुझे सैलरीज आते गए, सैलरीज ख़त्म होते जा रहे हैं. इट हैज़ नेवर बीन सच. आर्किटेक्चर में जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, whosoever is understanding the market in architecture can always thrive. वो आगे बढ़ सकता है. अभी हाँ, ये बात अलग है कि हम में भी घुसते घुसते इन फील्ड वी वोंट बी रिकॉग्नाइज्ड. अगेन आर्किटेक्चर थ्राइव्स ऑन रिकॉग्निशन. सो इफ आर्किटेक्ट्स डू रेस्पॉन्सिबली वर्क, आई फील दे हैव नेवर बीन इनटू सच कॉम्पिटिशन्स कि इनका पे स्केल कम है, उनका वो कम है. Because there are architects who are earning much more than what anybody is earning in sitting in those cubicles. और हाँ, पर ये भी है कि there is no particular ऐसे ग्राफ कि आज इतना मिलेगा, कल को उतना मिल जाएगा, कल को उतना मिल जाएगा. Never has there been exponential growth ऐसा बता दे हम, या फिर ऐसा कोई ऐसा लिखा हुआ कि ऐसे मिलते जाएगा हमें आगे आगे आगे. बट या मतलब इट हैज़ ऑलवेज बीन कि कभी इतना मिल रहा है, कभी ऐसा मिल रहा है, कभी वैसा मिल रहा है, कभी ऐसा मिल रहा है. सिंस वी आर वर्किंग फॉर पीपल, तो वो पीपल के साथ पॉलिटिक्स, पीपल के साथ इकोनॉमिक्स, पीपल के साथ सोशबिलिटी, ये सब जब हम देखते हैं तब आई गेस वो ग्राफ अपने आप ऊपर नीचे होते ही रहता है. तो देयर इज़ नेवर दिस प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि शायद आगे 10 साल में ये और बढ़ जाएगा या फिर वो हो जाएगा. बिकॉज आर्किटेक्चर कैन नेवर बी ऐसे इक्विवेलेंट टू द मनी वी गेट. टू माई अंडरस्टैंडिंग, मैं अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आई एम अ गुड आर्किटेक्ट. देर आर पीपल अगेन इन डॉक्टर्स. अब जो डॉक्टर बहुत पैसा कमा रहा है, डज दैट मीन कि बहुत अच्छा डॉक्टर? जो डॉक्टर पैसा नहीं कमा रहा है, जो गाँव में बैठ रहा है, बहुत लोगों के साथ बैठता है, वो ज़्यादा पैसा शायद नहीं कमाता है, बट ही इज़ इन टू ऐसे ग्राउंड प्रॉब्लम्स, वो तो ज़्यादा पैसा नहीं कमाते. क्या वो खराब डॉक्टर? इट हैज़ नेवर बीन सच. तो बताना थोड़ा मुश्किल है. अगेन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि ये आर्किटेक्ट पैसा तो कमा रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको तुम खराब आर्किटेक्ट कह रहे हो. डिपेंड्स हाउ इन व्हाट लेंस आई टेक इन टू अंडरस्टैंड ये खराब आर्किटेक्ट है कि अच्छा आर्किटेक्ट है. आर्किटेक्चर एंड इनोवेशन, इस पार्ट में मैंने ये जाना कि कितना इम्पोर्टेंट है इनोवेशन. बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा. आर्किटेक्चर में अगर इन एनी फील्ड इनोवेशन अगर होगा नहीं तो इट विल गेट स्टेल, सड़ जाएगा. कोई चीज़ अगर सड़ जाएगा, बिकॉज आर्किटेक्चर, टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर अगेन, आर्किटेक्चर में कोई ऐसा
like there's no right or wrong choices, there's always good or bad, because architecture में solutions जो रहते हैं those are always subjective and these are always assessed by the amount of accessibility you are providing to the kinds of users, the kinds of the spaces you are designing, जिसमें कि वो delve करता है बहुत ज़्यादा एक spectrum of things to address, but innovation is actually very much required, because बिना innovation के architecture बस copy होता जाएगा from stages to stages, from years to years it will get just copied again. So अगर innovation होगा नहीं, because हर generation का अलग problem है, to address problem there must be innovations, because problems will only be addressed with innovations. Problems ऐसे किताबी भाषा से address करने वाली चीज़ें हैं ही नहीं, हर बार नया problem आता है, हर बार नया problem के लिए नया innovation चाहिए, and architecture since it deals with people जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उन्हीं को सॉल्यूशन चाहिए, तो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम सॉल्यूशंस निकालें थ्रू इनोवेशन, बिकॉज बिना इनोवेशन के अभी जैसे एआई चारों तरफ चल रहा है एंड आई एम जेन्युइनली क्यूरियस कि आर्किटेक्चर को एआई कैसे अफेक्ट करेगा, एंड ऑफ कोर्स भैया बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किए हैं. सी आई स्टिल आई एम अनश्योर अबाउट द इन फील्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, बिकॉज मैं भी अभी ग्रेजुएट होऊंगा, बट considering my aspect of understanding about artificial intelligence and how we as students must be using it, artificial intelligence के इतने सारे variants निकल चुके हैं and इतने lucid variants निकल चुके हैं that actually help us in understanding if we are progressing in the right track, that too because there are multiple resources to which we can like go to, but there's always this time ka constraint, there's always this like feasibility to access those resources, but when it comes to artificial intelligence it helps to get all those things under a box, तो जिससे कि हमें easy हो जाता है to access those resources. But there have been instances also जहाँ पे it has been misused, I must say, by students, जिसमें कि उन्हें लगता है कि artificial intelligence हमें डिज़ाइन करके दे सकता है. It can't design yet. It can't design yet because we are designing for people, and artificial intelligence designs as per the data fed to it. It can give us ideas upon which we can like sharpen and provide better solutions, but it definitely considering the present stage of artificial intelligence, it definitely can't design in particular. It can help us assessing those designs. We can get help from its tools of designing, and well, artificial intelligence use करना अगर आया है तो we can use it in a way कि वो हमारे benefit में काम करे, rather than posing a question on our capabilities. Else artificial intelligence will always take over us. And to my understanding, artificial intelligence, as I have said, architecture is understanding of people, their sentiments, their the livable areas. Artificial intelligence अभी तक शायद वो aspect नहीं judge कर पाया है, तो we still have much time to like have it, we can even train it to understand them, but certainly architecture can't be replaced, like the architects who are into architects can't be replaced by artificial intelligence, but yeah, artificial intelligence can help architects to grow more. That's my opinion. अभी ये वाला जो सेगमेंट है ये मेरे खुद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे ये कैसे भी जानना है, दैट इज वंस इन ए लाइफ टाइम वाला सजेशन, गोल्डन सजेशन, डायमंड सजेशन, प्लैटिनम सजेशन. मेक वन थिंग क्लियर इन माइंड कि तुम एक ऐसे फील्ड में एनरोल हुए हो जहाँ पे यू कांट स्टैंड अलोन. आर्किटेक्चर अगर बहुत सारे फील्ड्स को अम्ब्रेला के नीचे ले रहा है तो विच मीन्स कि बहुत सारे फील्ड के लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, तभी तुम उस अम्ब्रेला को खड़े हो लेके. तो ये हमेशा क्लियर रखना कि आर्किटेक्चर में
you are never alone. You can't be alone any time. मतलब take this metaphorically, ऐसा नहीं कि अकेला बैठ नहीं सकता हूँ, nothing like that. पर आर्किटेक्चर में एक ऐसा फील्ड जो है हमारा, ऐसा डिपार्टमेंट जो है हमारा, 20 लोगों का तो तुम्हारा बैच है हार्डली. अब 20 × 4 80 लोग हमेशा डिपार्टमेंट में रहते ही हैं. एक टाइम आता है जब मतलब 100 लोग रहते हैं, जब इंटर्नशिप में कोई नहीं गया है. अब 100 लोगों का डिपार्टमेंट एक छोटा सा फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली ही सोच सकते हो. और ये डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट से इसलिए अलग रहता है इन NIT राउरकेला, बिकॉज बाकी डिपार्टमेंट्स में देयर इज वेरी 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 लेस बॉन्डिंग बिटवीन जूनियर्स, सीनियर्स एंड फैकल्टीज. ठीक है, यहाँ पे फैकल्टीज विल मेक यू बिलीव कि दे आर योर सीनियर्स पहले rather than being your faculties, which makes this the connectivity in these 3 end users of the department to very much connected, to very much be connected and कैसे बताएं, be ready for each other at any time of the year. ठीक है. और तो वो जो एक बैक एंड में स्टोरी चलता रहता है कि नए नया कॉलेज आ रहे हैं, देयर आर प्रॉब्लम्स जिसमें कि रैगिंग हो रहा है, वो हो रहा है, वो हमेशा से रहेंगे. वो भले एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा वीक है, वो हमेशा से रहेंगे. मतलब वो कैसे कहाँ कब हो रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर. बट या तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि फॉर whom आर यू गेटिंग इनटू, एंड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल यू आर गेटिंग इनटू. ठीक है. तो अब मेरा अगर सजेशन पूछोगे, यू हैव टू गेट गुड बॉन्डिंग विथ योर सीनियर्स. पहले तो गुड बॉन्डिंग विथ योर बैचमेट्स, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और दूसरा है गुड बॉन्डिंग विथ योर सीनियर्स. उसके बाद बी लेस अफ्रेड ऑफ योर सीनियर्स, बी लेस अफ्रेड ऑफ अप्रोचिंग योर सीनियर्स और फैकल्टीज, एनीबडी. बी लेस अफ्रेड, लाइक टॉक टू देम, go to them. Architecture, since it deals with people, you have to discuss things with people. तुम अंदर ब्लैक बॉक्स बन के सोच सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पे. यू हैव टू इंटरैक्ट, यू हैव टू लाइक गेट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. तुम खुद एड्रेस करोगे, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि यू थ्राइव इन दिस डिपार्टमेंट. तुम हमेशा ऐसा लगेगा तुम अकेले ही हो. वो नहीं होना चाहिए. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग दिस एटीट्यूड ऑफ इंटरैक्टिंग विद पीपल, इंटरैक्टिंग विद स्पेसेस. आई मस्ट से वो बहुत बात का अंडरस्टैंडिंग है, क्या कर रहे हैं पागल जैसा लगेगा, बट या यू हैव टू इंटरैक्ट, विद पीपल, इंटरैक्ट विद एवरीबडी यू सी अराउंड. और अगेन अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज द करंट जनरेशन जो अभी आगे आने वाला है, लाइक हाफ अ डेकेड के बाद, मेरे हाफ अ डेकेड के बाद इन जॉइनिंग आर्किटेक्चर, तो उनके पास देर आर दीज एडवांटेजेस कि वो दे आर गेटिंग इनटू द इंस्टीट्यूट, गेटिंग इनटू द डिपार्टमेंट विद दिस नोशन कि वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद अस एंड अदर इंटरनेट रिसोर्सेज. So what I feel, what I have been feeling in these 4 years, जो चाहिदा है बुक्स को लेके, फिजिकल रिसोर्सेज को लेके, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है. तो विच इज़ अ रॉन्ग थिंग आई मस्ट से, बिकॉज वॉट एवर हैज़ बीन इन टू इंटरनेट वो इसी किताबों से गया है. और ऐसे बहुत सारे किताबें हैं जो अभी तक डिजिटाइज हुई नहीं है. वो हो भी शायद नहीं सकती है, बिकॉज सबके पास वो कॉपीज़ नहीं है. कहाँ से डिजिटाइज हो गया? अब सबको फ्री में मिले वैसा भी कंटेंट है नहीं. वो यू हैव टू पे फॉर इट. एंड इफ़ यू आर गेटिंग दोज कंटेंट विथ योर पैकेज ऑफ लाइक लर्निंग आर्किटेक्चर, 5 साल का BR डिग्री इन योर लाइब्रेरी, यू शुड एक्सप्लॉइट इट. तुम्हें यहीं आके उस चीज़ को देखना पड़ेगा और तुम्हें करना चाहिए. अगर 5 days ऑफ अ वीक कॉलेज खुला रह रहा है, डिपार्टमेंट खुला रह रहा है, तो 5 days ऑफ अ वीक में वीकली 1 बुक या 2 बुक तो तुम इशू करने ही चाहिए. शायद 2 ही बुक कर सकते हैं हम, वो 21 days के लिए वैलिड रहता है. तो बुक्स इशू करो, या तो इशू नहीं कर रहे हो तो आके वहाँ पढ़ो, थोड़ा टाइम निकाल के लाइब्रेरी का टाइमिंग्स रिवाइज करवाओ या फिर कुछ भी करवाओ, पर विजिट द लाइब्रेरी इन द डिपार्टमेंट. देयर इज़ अनदर लाइब्रेरी इन द सेंट्रल लाइब्रेरी सेक्शन, हमारा सेक्शन है वहाँ एक, बट देयर आर मल्टीपल बुक्स जो कि यहीं आ चुके हैं हमारे में. वहाँ बहुत कम है. वी हैव आवर रिप्रेजेंटेशन वहाँ, बट वी हैव आवर होम हियर.
तो विजिट योर होम, योर लाइब्रेरी, एंड वहीं से किताबें देखो, वहीं से तुम कॉपी किताब पकड़ के आओ, वहाँ स्केच करो. हाँ, मेक दिस हैबिट ऑफ हैविंग हैंड स्केचेस वेरी मच, ठीक है, बिकॉज कैड मतलब कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस में आने से पहले पेंसिल्स अगर तुम्हारे फ्री हैं, तुम्हारा हाथ फ्री है, ब्रशेस फ्री हैं, दैट विल हेल्प यू लाइक एक्सप्लोर मच मोर क्रिएटिव आइडियाज rather than making boxes and arranging them or making circles and arranging them on a computer का इतना बाई 16 बाई 10 का स्क्रीन कभी हेल्प नहीं करेगा. When you sit with a paper, with a big paper, तुम एक पेंसिल लिए हो, तुम ऐसे फ्री हो, कहीं भी कुछ भी लाइंस कर्व्स कुछ भी बना सकते हो. there is no restrictions. तुम्हारा ब्रेन ही जो करवाएगा तुमसे. there is no restriction कि हम L एंटर मारेंगे फिर काम कर रहे हैं, P एंटर मार रहे हैं, C एंटर मार रहे हैं. It has been never such. So you have to start practicing making sketches. People are very bad at sketches, which is fine. There's no need कि तुम बहुत पहले से ही आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स या बहुत पहले से ही ऐसे एनाटॉमिकल ड्राइंग्स या फिर ऐसे फाइन आर्ट्स के ड्राइंग्स तुम्हें आते हो. नहीं चाहिए. जिसके पास है दैट्स एन एडेड एडवांटेज कि वो उस चीज़ को परसीव कर पाएगा. कल को अगर मेरा कंप्यूटर क्रैश कर गया है, मुझे एक व्यू नहीं मिल पा रहा है, मेरे रेविट में एक व्यू मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ बिकॉज कंप्यूटर क्रैश कर गया, व्हाट विल आई डू? विल आई जस्ट सिंपली शट डाउन द कंप्यूटर एंड सिट लाइक दैट जब तक कंप्यूटर ठीक हो जाएगा? नहीं. सिंस मुझे बहुत पहले से समझ में आता है कि हाउ अ व्यू शुड लुक, और मेरा बिल्डिंग मैं खुद अपने आंखों के अंदर विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, आई कैन सिंपली टेक अ ड्राइंग शीट, मैं खुद हाथों से ही बना लूँगा उस चीज़ को. रिप्रेजेंटेशन ही चाहिए ना. मैं अभी हाथ से ईंट जोड़ के तो बना नहीं रहा हूँ, मुझे मेरे सामने वाले को बस समझाना है कि वो चीज़ दिखेगा कैसे. इफ इट हैज़ बीन इट विल बी कंसीव, तो वो कैसा दिखेगा. तो मैं उस चीज़ को वेरी वेल आई कैन ड्राफ्ट इट विद माई हैंड, विच नीड्स प्रैक्टिस. जिसके लिए विजुअल आर्ट्स के एक कोर्स रहता है हमारा, हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं. और या जिनको नहीं आता है, स्क्रिबल तो करना आता है, स्क्रिबल करके कुछ तो बना सकते हैं. और मार्क माई वर्ड्स, इन 4 सालों में तुम्हारा स्क्रिबलिंग अगर तुम कर रहे हो हर रोज़ या फिर विथ टाइम कर रहे हो, एट टाइम्स कर रहे हो स्क्रिबलिंग, इट विल ऑलवेज हेल्प यू. इट विल ऑलवेज हेल्प यू जनरेट न्यू आइडियाज. हमेशा से जितना भी खराब स्केच हो, कोई भी आर्किटेक्ट का स्केच उठा के देख लो, कोई बता दे मुझे कि वो मतलब किसी आर्किटेक्ट का स्केच है, किसी बाहर वाले को पूछेंगे अगर हम कि तुम क्या लगता है तुम्हें ये कोई फाइन आर्ट्स वाला बनाया होगा, या क्या लगता है तुम्हें ये कोई बहुत अच्छा इंसान बनाया होगा, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनाया होगा. You will never get such an मतलब ऐसा गुड पॉजिटिव कमेंट इन दैट. मैं बताया ना, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स. डॉक्टर्स का हैंड राइटिंग देखे हो, आर्किटेक्ट्स का ड्राइंग वैसा रहता है. एट टाइम्स आर्किटेक्ट का ड्राइंग वैसा रहता है. ड्राइंग्स एज इन द कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग्स, जिसमें बस उन्हीं को पता है कि वो क्या बना रहे हैं. वो रहना ज़रूरी है. अब उसको वो रिफाइन करते जाते हैं. जब कल को मैं अगर आर्किटेक्ट हूँ, मैं कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग ऐसे बना दिया जैसे मुझे समझ में आया, मैं उस चीज़ को भी आगे रिफाइन करता गया. जब तक मैं तेरे तक लेके जाऊँगा कि वो तू समझेगा, आई विल मेक श्योर कि वो समझने लायक हो. अभी तो वो मुझे समझा रहा था कि क्या बनाना है, फिर धीरे धीरे आई विल रिफाइन ऑन इट. बट यू हैव टू स्टार्ट विद समथिंग, दैट समथिंग शुड स्टार्ट विद स्क्रिबलिंग. लास्टली यार, 5 साल NIT राउरकेला में रहने के बाद जब इस कॉलेज को, इस कैंपस को छोड़ के जा रहे हैं यार, फील कैसा हो रहा है? बहुत ख़राब फील होगा, बहुत ही ख़राब फील होगा. Because NIT Rourkela has been a home to me. Although I am a Rourkelite, I live nearby the institute only. But NIT Rourkela's campus and the environment it thrives in is actually very much important for a college like this scale of like NIT Rourkela. It should have such a big campus, and this campus, even talking about the Department of Architecture, what I feel, architecture isn't, ऐसा नहीं है कि architecture एक building में ख़त्म हो जाना चाहिए. Architecture goes beyond like vertical spaces. It is spreaded, which is why NIT Rourkela campus has always been like a safe haven for us to explore each and every corner. And इतना बड़ा कैंपस है, वी हैव नेवर गॉट बोर्ड ऑफ द कैंपस.
ईच एंड एवरी डे हैज़ बीन सच कि एक नया जगह हमें दिख ही जाता था. तो एंड नया जगह बाय नया जगह आई मीन नए लोग. तो नए लोग, नए जगह, नए एक्सप्रेशन एंड न्यू थिंग टू एक्सप्लोर. तो NIT Rourkela हैज़ बीन सच अ फाउंडिंग मेमोरी. तो आई वुड नेवर एवर फॉरगेट इट. और आर्किटेक्चर NIT Rourkela में बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एक तो बैच स्ट्रेंथ हमारा कम है, फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छा है एंड दैट टू एक जो नया एनवायरनमेंट हमें मिल जाता है जिसमें कि वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि हम कुछ इंजीनियरिंग ब्रांचेस के साथ भी मिल सकते हैं कभी कभी. दैट्स अप टू पर्सनल प्रेफरेंस कि हमें इंजीनियरिंग ब्रांचेस के साथ मिलकर कुछ करना है कि नहीं. बट या बीइंग इनटू दिस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, अ क्रिएटिव फील्ड actually needs engineering supports and NIT Rourkela provides this platform to have this collaboration among all those departments. So yeah, मजा तो आया है NIT Rourkela में architecture. So that's a wrap. We hope you enjoyed this episode. Today, this sapien helped Nihar understand architecture in a whole new way, and it sparked an even deeper interest in him. There's no doubt he learned a lot. Of course, we know there's always room for improvement, and we're committed to getting better with each episode. One step at a time, we'll keep growing, keep learning, because that's what this journey of Sapien is all about. If you enjoyed the episode, don't forget to subscribe and hit that bell icon so you never miss out on our awesome videos.